सत श्रीकाल सारे नू मैं सार्थक ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਣक्य आईएएस ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ as you all know we have started this lecture series on ethics which is very much relevant for your upcoming exam of Punjab PCS mains which is going to be held on 1st of April as per the official notification of Punjab PCS, right? And we all know that, and I hope you are preparing very well for that, right? And for that only we have brought up with this lecture series which is absolutely free of cost. ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ. It is completely free of cost. We will be covering the whole ethics. Already we have covered a lot of topic, right? A lot of lectures have already been delivered in this particular lecture series, and this is in continuation of that particular lecture series only, right? And we will cover the whole syllabus, don't worry about it, right? So with all that information, let's start our lecture. The topic of today's lecture, as continued in the last lecture, is probity in governance, right? We have started the probity in governance and we will be continuing with that lecture as well, with that topic only. So lecture start ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ important information, right? ਇੱਕ ਬਹੁਤ information ਕਿਹੜੀ? This mains box, right? ਚਾਣक्य आईएएस ਅਕੈਡਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ mains ਦਾ main box. What does it includes? It includes printed booklets. We will be getting 15 booklets plus test series, mains test series. ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 8000 rupees. 8000 rupees ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲੇ ਬੁਕਲੇਟ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ. ਜੇ ਕੱਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ 5000 rupees ਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਬੋਥ ਦ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋਰਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੈ. So if you haven't subscribed to any particular test series till now, right, so you can definitely go for this test series. Test series ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ. ਠੀਕ, ਚਲੋ. So now with this let's start our lecture. We are dealing with administrative ethics. ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਟੀ ਇਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ. ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ सिलेबस की गल करिए, जो आप सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के अंदर यू विल बी गेटिंग ये वाले टॉपिक कवर करने हैं. कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, ठीक है. देन राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड्स ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शन. इनफैक्ट ये वाला टॉपिक भी नहीं आएगा, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस भी नहीं है. यू विल बी कवरिंग दिस टॉपिक ओनली, ठीक है. यू कैन इग्नोर दिस एज वेल. सो फिजिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड पावर ऑफ प्रॉपर्टी जो हमारा आज का टॉपिक भी है, ठीक है. वी विल बी कवरिंग दिस दिस वेरी टॉपिक, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. हमने लास्ट लेक्चर में वी गॉट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, गवर्नेंस हमने समझा था, राइट. हमने समझा था प्रॉपर्टी क्या होता है. सो जस्ट लेट्स गेट अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट, ठीक. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट उसकी. यस, सो सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट गवर्नेंस. गवर्नेंस की बात कर लेते हैं. गवर्नेंस इंक्लूड्स टू थिंग्स, ठीक है. सर्विस डिलीवरी, ठीक है. इट इंक्लूड्स सर्विस डिलीवरी एंड इम्प्लीमेंटेशन, right? Or you can say it includes basically these two things. First is decision making and the implementation of this decision making. Implementation of decision making, राइट. पहले पॉलिसी बनाएंगे और उसके बाद उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है. ये दो एस्पेक्ट्स कवर करता है आपका गवर्नेंस. और कौन सी मशीनरी है जो ये चीजें कर रही होगी, द मशीनरी विच विल बी डूइंग दिस इज गवर्नमेंट, राइट. गवर्नमेंट विल बी परफॉर्मिंग दीज टू फंक्शंस, राइट. डिसीजन मेकिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग, ठीक है. ये दो काम कौन सी कर रही होगी आपकी गवर्नमेंट, और ये गवर्नेंस एस्पेक्ट है, ठीक. ओके, सर्विस डिलीवरी से भी बताया था मैंने, लाइक कि सर्विस डिलीवरी से भी रिलेट कर सकते हो बिकॉज सिटीजंस आर पेइंग टैक्सेस एंड दे आर गेटिंग सर्विसेज विच इज एक्चुअली व्हाट गवर्नेंस. और वो किस एस्पेक्ट में किस तरीके से देनी है, ये दो एस्पेक्ट कवर करेंगे वो, राइट. कि वो सर्विस डिलीवरी के अंदर आपके डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट आएगा और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग. यस और नो, अच्छे से डिटेल में समझा था इसको. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस,
व्हेन वी टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस, इसके भी एक अलग से एस्पेक्ट्स हैं गुड गवर्नेंस, इन बिटवीन बात करते रहेंगे इसके बारे में भी, कई सारे मेजर एस्पेक्ट्स है, बट अगर मैं सिंगल लाइन में आपको समझने के लिए कहूँ कि गुड गवर्नेंस मीन्स वेलफेयर, गुड गवर्नेंस कवर्स वेलफेयर. Like what does the welfare mean here? When we talk about welfare, I am talking about good governance. It means the welfare of the people. And when I say about the welfare of the people, it means helping the vulnerable sections, helping the vulnerable sections as well. ठीक है, मतलब it means covering all sections of the society, especially the vulnerable sections. It actually means equitable resource sharing of resources, equitable sharing of, or you can say utilization of resources. उस ऐसी गवर्नेंस को बोलोगे आप क्या, गुड गवर्नेंस, जब एक्चुअली जिनको नीड है वहां तक वो चीज पहुंच रही है, ठीक है, उसको बोलोगे क्या, गुड गवर्नेंस. यही मैं एग्जांपल देता हूँ कि लाइक इंटीग्रिटी में भी आपको बताया था, ठीक है, कंपैशन वाले में बताया था कि जो एज अ सिविल सर्वेंट लेट से आपके पास कोई सिटीजन आते हैं, वल्नरेबल सेक्शन से आते हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट पूरी नहीं है, बट वो बाकी सारी चीजें कवर कर रहे हैं, लाइक ही एक्चुअली रिक्वायर्स दैट पर्टिकुलर स्कीम, और उसके अंदर बाकी एलिजिबल है वो, बट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती थी, तो वहां पर एज एन ऑफिसर यू शुड हैव कंपैशन. ठीक है, वहां पर उनके मतलब वहां पर आपको ये नहीं करना सिर्फ ऑनेस्ट होके कि भाई हाँ ठीक है आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और अब जाओ आप वैलिड नहीं हो. देयर यू शुड फॉलो गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस का पार्ट एक ब्यूरोक्रेट भी रहेगा, तो उसको वहां पे क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करके देनी है सामने वाले बंदे की, सो दैट एक्चुअली वो वाली चीजें जो उनकी नीड है, जिनको जरूरत है, उन तक पहुंच पाए. ठीक है, वो जस्ट एन एग्जांपल था, बट सिंपली अगर मैं गुड गवर्नेंस की बात करूं तो इट मींस वेलफेयर ऑफ द पीपल. जब भी गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन आया या टॉपिक आया लिखना है, तो गुड गवर्नेंस बोले तो वेलफेयर. वेलफेयर मतलब वल्नरेबल सेक्शंस तक पहुंचना. इट मींस कवरिंग ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इक्विटेबल शेयरिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. दैट इज व्हाट गुड गवर्नेंस. और गवर्नेंस हमने देख ली है. ठीक है, आई होप समझ आया होगा इतना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वाज प्रोबिटी. और यस, वन मोर थिंग, गवर्नेंस की जब बात करते हैं, एक सेकंड और बस ये भी देख, व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नेंस इट कैन बी इन मल्टीपल एस्पेक्ट्स. ठीक है, यू कैन कॉल कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एक डायमेंशन है, इंटरनेशनल गवर्नेंस, नेशनल गवर्नेंस. ठीक है, देन यू हैव लोकल गवर्नेंस एज वेल, लोकल लेवल पे भी होती है गवर्नेंस, राइट. तो ये डायमेंशंस हो सकती हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसके. क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो नाउ वी विल कम टू प्रोबिटी. अब प्रोबिटी को समझने के लिए, ठीक है, प्रोबिटी की डेफिनेशन ही इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देती है. इट मींस हैविंग, ठीक है, ये कंडीशंस मीट करनी चाहिए. तीन कंडीशंस है, अगर वो मीट करेंगे तो दैट मींस प्रोबिटी इज देयर. फर्स्ट इज इट कैन, यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, देन सेकंड, दैट पर्सन शुड बी ऑनेस्ट. देन थर्ड, इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, और साथ साथ स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज. ये तीनों चीजें कंबाइन करके क्या बनाती है, प्रोबिटी. ठीक है, इट मींस दैट it definitely probity always contains of all good virtues, high values and virtues, good virtues. ठीक है, यस और नो, राइट. अच्छे से समझा था इसको. प्रॉबिटी क्या था कि आप, इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपकी जो वैल्यूज है उस पर डटे रहना. यू वॉक व्हाट यू से, आपके थॉट्स और एक्शन मैच करें. फिर चाहे वो वैल्यू सही हो गलत हो वो अलग बात है, लेकिन आपकी जो वैल्यू है उसको चाहे कोई गलत मानता है कोई सही मानता है, लेकिन आप उस वैल्यू पे टिके हुए हैं नो मैटर व्हाट. दैट इज योर इंटीग्रिटी. ऑनेस्टी क्या होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, लॉ के अंडर रहना, हमेशा ऑनेस्टी होती है. दैट इज सिंपल एज दैट, ईमानदारी. देन प्रोबिटी, जिसको सत्यनिष्ठा भी कहा जाता है. ठीक है, प्रोबिटी का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर इंटीग्रिटी भी हो, ऑनेस्टी भी हो, और साथ के साथ आपके जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव साइड ही होनी चाहिए, मस्ट कंडीशन है. यहाँ पर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव मतलब सोसाइटी की नजरों में जो पॉजिटिव है वैल्यू, वो वाली, जिसको वो पॉजिटिव गुड सेंस में देखते हैं. यस,
एंड प्रॉबिटी ऑलवेज डेफिनेटली इसकी बात हमेशा पब्लिक लाइफ के अंदर ही होती है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही करी जाती है, पर्सनल लाइफ के लिए, नॉर्मल सिटीजन के लिए नहीं है ये। गवर्नेंस वाले ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आपके पब्लिक सर्वेंट्स हैं बेसिकली, उनके अंदर ही वहीं वहीं पर प्रॉबिटी की ज्यादा बात होगी हमेशा। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि अगर कोई डीएम है, कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, तो उनको, उनके लिए लाइक लिव इन रिलेशनशिप्स में उन, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप वगैरह जैसी चीजें कर रहे हैं, नॉर्मल कोई सिटीजन होता तो उसके लिए सही था, कोई दिक्कत नहीं है भैया, उसके लिए इंटीग्रिटी है, वो सही है, उसके लिए वैल्यू सही है, वो सोसाइटी में लीगल भी है आज की डेट में, वो तो कुछ गलत नहीं है। बट एज अ पब्लिक सर्वेंट आप ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोसाइटी के अंदर आपकी अच्छी इमेज नहीं जाएगी, अनएथिकल मान रहे होंगे कहीं ना कहीं लोग उसको। ठीक है, तो उस सेंस में आप समझ सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया है वो सब, नहीं उसमें एक बार आप लास्ट लेक्चर देख लेना अगर आपको नहीं अभी भी समझ आ रहा तो, ये जस्ट हमें क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इट इज अ रिवीजन एस्पेक्ट ओनली। ठीक है, चलो, सो विद दिस नाउ लेट्स गो टू द स्लाइड्स। राइट, तो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन क्या है? सी, वर्ल्ड बैंक डिफाइंस गवर्नेंस एज द मैनर इन विच द पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज। ठीक है, ये भी देख लिया था लास्ट क्लास में, फटाफट देखेंगे। The World Bank refers to three aspects of governance. First, the form of political regime, then the process by which authorities exercise in the management of a country's economic and social development, then the capacity of the government to design, formulate and implement policies and discharge functions. Right, ये वही चीजें हैं कि like the process by which authorities exercised decision, ठीक है, the capacity of government to design, ये है decision making, this is decision making, और ये है implementation। ठीक है, एंड गवर्नेंस के अंदर द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रेजिम की बात भी करेगी, गवर्नेंस के अंदर की डेमोक्रेसी है, किस टाइप की है, तो गवर्नेंस के अंदर वो वाली एस्पेक्ट भी कवर हो जाती है, उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, चलो देन in 1997 UNESCO defined governance as a process whereby citizen needs and interest can be articulated for the positive social and economic development of the entire society and in the light of a perceived common good। ठीक है, UNESCO defined governance as a process whereby citizen needs and interest can be articulated for the positive social and economic development of the entire society and in the light of perceived common good। ये एक और डेफिनेशन है यूनेस्को की, इफ यू वांट टू राइट दैट डाउन यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन, एक अच्छी लैंग्वेज है बट मीनिंग मोर और लेस वही सेम ही है। ठीक, गवर्नमेंट गवर्नेंस इज नॉट लिमिटेड टू द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज सेड दैट द टास्क ऑफ गवर्नेंस इज टू डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू हैंडल अलोन। राइट, ये सिर्फ एक्शंस पे नहीं है कि क्या आप काम कर रहे हैं, इसकी मल्टीपल डायमेंशंस है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं कि लाइक कोई पॉलिसी बनाई और उसको जैसे जैसे इंप्लीमेंट कर दिया, क्या ये गवर्नेंस है? नहीं ना, इट शुड बी परफेक्टली इम्प्लीमेंटेड, जो उसका पर्पस है, जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक्चुअली को क्या एड्रेस कर रहे हैं वहां तक पहुंचनी चाहिए, अगर वो नहीं पहुंच रही तो वो सही नहीं है। राइट, इट डज नॉट मीन ओनली दैट, तो एक पूरा प्रोसेस है, तरीके से होनी चाहिए चीजें। ठीक है, एंड गवर्नमेंट के अंदर भी आप देखते हैं कितने सारे अलग गवर्नेंस के लिए काफी डिपार्टमेंट्स बने हुए, मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री में फर्दर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर भी काफी सारे एम्प्लॉइज है, तब जाके काम चीजें चल रही हैं। राइट, ओके, देन this assertion that governance goes beyond the scope of government reflects the essence of democratic governance, which ensures continuous citizen participation and engagement in the process of governance। Right, see, this assertion that governance goes beyond the scope of government reflects the essence of democratic governance, which ensures continuous citizen participation and engagement in the process of governance। राइट, देखा है हमने सब लास्ट लेक्चर में कि गवर्नेंस के अंदर सिटीजन की पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर डेमोक्रेसी की हम बात करें तो दे कैन बी टू ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लाइक हम स्विट्जरलैंड का एग्जांपल ले, वहां क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो वहां पर सिटीजन से हर चीज के लिए डायरेक्टली ओपिनियन लिया जाता है उनसे कि भाई क्या आपका क्या राय है इसके ऊपर, कोई भी टॉपिक है, कुछ भी है। लेकिन इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां पर भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। तो ऑल इन ऑल सिटीजंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है गवर्नेंस के अंदर, अगर एक अच्छी ढंग से गवर्नेंस को ढंग से फॉलो करना है तो। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस, इट प्रमोट्स इक्विटी, पार्टिसिपेशन, प्लूरलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, democracy and the rule of law in a manner that is effective, efficient and
ड्रॉइंग सॉरी एंड्यूरिंग। सी व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है रूल बाय पीपल एंड ऑल। रियलिटी में डेमोक्रेसी तभी आती है जब बिल्कुल लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो वल्नरेबल सेक्शन है, वहां तक बात पहुंच पाए, अनटू द लास्ट, ठीक है, हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं, वहां उन तक पे जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पहुंच सके, मतलब उनको ऊपर उठाया जा रहा है, उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है, दे आर बीन एक्चुअली क्लियरली एड्रेस्ड बीइंग। ठीक है, और क्या इंडिया में ऐसा और होता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा होता, तो वहां पर लैकिंग होती है चीजें। सो उस पे का किसी और बात करेंगे, बट पॉइंट बीइंग गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का रिलेशन जब डेमोक्रेसी से आप बात करोगे तो डेफिनेटली वहां पर वल्नरेबल सेक्शंस, वेलफेयर, इक्विटी, प्लूरलिज्म, इस टाइप की बातें करनी है आपको। ठीक है, प्लूरलिज्म का मतलब यही है कि प्लूरली सबको इंक्लूड करके ला रहे हो आप, किसी पर सिर्फ कुछ लोगों का फायदा नहीं हो रहा, सबका फायदा हो रहा है उससे, राइट? ओके, सेकंड एआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आप कोट कर सकते हो। सेकंड एआरसी हैज रिकॉग्नाइज्ड सम कोर प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। फर्स्ट, rule of law, which requires that laws and their implementation be transparent, predictable, equitable and credible. Yes, then accountability at each level of administration. Okay, minimization of unfettered discretion, putting the citizen first, citizen centric governance, governance to be built on strong ethical foundation, principle of subsidiarity, which implies both devolution and delegation of authority. ठीक है, तो ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप समझ आ रहे होंगे। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पहले काफी जगह पढ़ चुके होंगे, ठीक, बट स्टिल एक छोटा छोटा बता देता हूँ सबके बारे में। जब भी हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ सिर्फ लेटर नहीं, स्पिरिट में भी, इन लेटर एंड स्पिरिट बोथ शुड बी फॉलो, मतलब इट शुड बी इक्विटेबल एंड क्रेडिबल, सबके पास फायदा। मैं बोल रहा हूँ गुड गवर्नेंस मतलब इक्विटेबल, वेलफेयर, ये वाले वर्ड्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सो अकाउंटेबिलिटी एट ईच लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी बात बनेगी। ठीक है, देन मिनिमाइजेशन ऑफ अनफेटेड डिस्क्रेशन। ठीक है, लॉ नियम के अकॉर्डिंग चलना है, अपनी मर्जी से नहीं चलना, डिस्क्रेशन इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। देन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, यस डेफिनेटली, गवर्नेंस टू बी बिल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन, यस, बेस है वो तो, जब तक एथिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे बात कैसे बनेगी। देन डेवोल्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट, बिल्कुल हायरार्की में जब अथॉरिटी की बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक, वहां तक भी पावर जानी चाहिए, तभी आप गुड गवर्नेंस कर पाओगे। उन तक पहुंचाओ, वहीं तो रीच करेंगे सबसे ज्यादा रीचेबल है वो, बिल्कुल लोअर लेवल सोसाइटी के भी, राइट, डायरेक्ट टच में होते हैं लोगों के। सो देन अब बात करते हैं प्रॉबिटी की। सो लेट्स कम टू प्रॉबिटी। The concept of good governance is now being extended to the concept of ethical governance and this forms the basis of probity। ठीक है, प्रॉबिटी मतलब बोले तो एथिकल गवर्नेंस, जब भी बोलो सी प्रॉबिटी को, आई थिंक अब आप रिलेट कर पा रहे होगे एथिकल गवर्नेंस से। यू कैन कॉल इट एथिकल गवर्नेंस में बोले तो प्रॉबिटी। अगर आप प्रॉबिटी फॉलो कर रहे हैं, गवर्नेंस के अंदर प्रॉबिटी अगर आ जाएगी तो इट विल डेफिनेटली लीड टू एथिकल गवर्नेंस, दैट इज फॉर श्योर। और यू इनफैक्ट वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, अगर एथिकल गवर्नेंस है तो गवर्नेंस के अंदर प्रॉबिटी वाली एस्पेक्ट अपने आप आ जाएगी। yes, right, so they are one and the same thing, you can say. See, the concept of good governance is now being extended to the concept of ethical governance and this forms the basis of probity। ठीक है, probity means being morally and ethically above reproach। ठीक, मतलब कि मॉरली कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यू शुड ऑल द टाइम आपको मॉरल और एथिकल रहना ही रहना है। आपके लिए आपके मॉरल प्रिंसिपल्स वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिकल आपको होना ही होना है। देयर इज नो लाइक अदर, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। प्रोबिटी का सिंपल सा मीनिंग, अगर आपने इस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो यू आपकी उसमें से प्रोबिटी गई। ठीक है, और अगर जब प्रॉबिटी कोई गवर्नमेंट के अंदर जब प्रॉबिटी फॉलो होती है तो वापस सिटीजन्स का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। ठीक है, और तभी गवर्नेंस भी सही से रहती है। इसीलिए जब सिटीजन्स का ट्रस्ट है तो आपकी जो भी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना इजी रहेगा, क्योंकि सिटीजन आपके साथ आपकी बातें मानेंगे, जो भी आप कहेंगे दे विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, दे विल ट्रस्ट यू। ठीक, यस, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस इज सम टोटल ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड वैल्यूज लाइक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस एंड ऑब्जेक्टिविटी। बोले तो प्रॉबिटी के अंदर ये सारी वैल्यूज मैंडेटरी हैं, इन सब को मिला के बनती है प्रॉबिटी, लाइक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस एंड ऑब्जेक्टिविटी, राइट।
आपको सब्जेक्टिव नहीं होना, सब बराबर है आपके लिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपको किसी में बायसनेस नहीं होनी चाहिए, अनबायस रहोगे आप। Probity implies not just absence of dishonest behavior or corruption, but also an added element of ethical trust. Right? Definitely. यहाँ पर मैंने एग्जांपल से ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, कि करप्शन ना करना और सिर्फ सिर्फ ऐसा ना हो कि आप करप्शन नहीं कर रहे, डिसऑनेस्ट बिहेवियर नहीं है, क्या सिर्फ इतने से प्रॉपर्टी ये या गवर्नेंस सही चलेगी? नहीं, उसके लिए साथ में आपको एथिकल भी होना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। राइट, इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था लास्ट लेक्चर में, तो काइंडली वॉच दैट लेक्चर, वहां पे अच्छे से बताया है इस लाइन का मीनिंग, एक एग्जांपल से भी समझाया था। आप उस लेक्चर को डेफिनेटली देखिए, आपको बहुत से समझ आएगा। ठीक, ओके। देन probity stands for impeccable standards और morality in public life। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? पब्लिक लाइफ। प्रोफेशनल नहीं, पब्लिक लाइफ की बात हो रही है। बाय द वे, probity मतलब आपको पब्लिक और जो जिस बंदे की गवर्नेंस की जब बात कर रहे हैं, तो जिन सिविल सर्वेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, तो दी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ दोनों के अंदर उनको ऑल द टाइम्स अपनी स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन शो करनी पड़ती हैं, देन यू विल से probity। बट इन जनरल probity मतलब सिर्फ पब्लिक लाइफ की बात हो रही है, पब्लिक प्रोफेशनल्स की बात हो रही है बेसिकली। So probity stands for empirical standards of morality in public life, right? It goes beyond financial honesty or non-corrupt behavior, right? Again, सिर्फ non-corrupt होना, corruption ना show करना, right? कि financial integrity show करना, क्या सिर्फ इतने से हो जाएगा आपका probity? नहीं, उससे ऊपर आपको ethical होना पड़ेगा हर टाइम पे, लोगों के भले के लिए सोचना पड़ेगा हमेशा, तब probity आएगी। Probity means that public servants will take no undue advantage of any sort from their office. They will avoid any semblance of impropriety. ठीक है, एब्सोल्युटली नो करप्शन की, हमेशा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की सर्विस के लिए सोचना है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना, उसको हमेशा यू नीड टू कीप दैट असाइड ऑल द टाइम। ठीक है, ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एज probity. Then let's talk about philosophical basis of governance. Right? Okay. So the philosophical basis of governance can be traced back to ancient Greece. See, philosophical basis of governance से पहले let me talk a bit about philosophy, कि जब हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, अपने टॉपिक एथिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका फिलोसफी का क्या मीनिंग हो रहा है? सी, फिलोसफी जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा वो वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसेंडेंटल वाले क्वेश्चन आते हैं कि लाइफ क्यों एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, व्हाई देयर इज एनीथिंग, ये चीज क्यों एग्जिस्ट कर रही है, किस लिए एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे दिमाग में आता है कि फिलोसफी का मतलब सिर्फ वही सब होता है, राइट, सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि वी जनरली रिलेट फिलोसफी टू दीज थिंग्स, द ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन जनरल। ठीक है, कि व्हाई समथिंग एग्जिस्ट, व्हाई लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है, क्यों, किस लिए, इस टाइप की चीजें। बट एक्चुअली में अगर आप देखो तो फिलोसफी गोज बियॉन्ड दैट, फिलोसफी गोज बियॉन्ड दैट। और जब हम, इट सिंपली मीन्स सर्च ऑफ नॉलेज, सर्च ऑफ नॉलेज, राइट, राइट, एंड इट इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज, राइट, ठीक है। इसके अंदर हमेशा क्या करते हो आप? हमेशा क्वेश्चन करते रहते हो, राइट। इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, हर चीज पे क्वेश्चनिंग करते रहते हैं कि क्यों है, किस लिए है। बट ये क्वेश्चनिंग आप किस लिए करते हो? नॉट टू चैलेंज समवन। ये जो क्वेश्चनिंग होती है ये चैलेंज करने के लिए नहीं होती, इट इज नॉट टू चैलेंज, रादर टू गेन नॉलेज, रादर इट इज टू गेन नॉलेज, चीजों को समझने के लिए ढंग से, अच्छे से, नॉलेज गेन करने के लिए, उसके लिए होती है फिलोसफी, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लव फॉर नॉलेज, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द लव फॉर नॉलेज। लाइक इसमें क्या करते हो? हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते हो, फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हाई, ठीक है, हाउ, यस और नो, ठीक है।
तो जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, लाइक अपने फिलोसफिकल बेस किसकी, प्रोबेबिलिटी और गवर्नेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी यही होगा, ठीक है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बात नहीं होगी यहाँ पर, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। चीजों को समझने के लिए कर रहे हो आप, नॉलेज गेन करने के लिए करते हैं यहाँ पर, उसी वही वाली एस्पेक्ट्स अपने को पढ़नी है। तो हम बेसिकली इन 3 क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड गवर्नेंस, व्हाई देयर इज द नीड ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। देन हाउ यू विल रीच दिस, कैसे आप अचीव करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये 3 एस्पेक्ट देख रहे होगे आप, जिसमें से हमने एक ऑलरेडी देख ली कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड गवर्नेंस, ये हमने अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी या व्हाट इज गवर्नेंस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, वी हैव कवर्ड दैट। देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हाई इज प्रोबेबिलिटी सॉरी, या फिर व्हाई गुड गवर्नेंस, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर आप प्रोबेबिलिटी रहेंगे, प्रोबेबिलिटी से क्या होगा, यू विल बी गेटिंग गुड गवर्नेंस, एथिकल रहना, उससे क्या अचीव करोगे आप, गुड गवर्नेंस। यस और नो, गुड गवर्नेंस से क्या होगा, वल्नरेबल सेक्शंस पे भी जाएंगे, ठीक है। वल्नरेबल सेक्शंस, वेलफेयर होगा, ठीक है, प्लूरलिज्म, इक्विटेबल, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग इजी रहेगी। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये दोनों एस्पेक्ट हम कवर कर चुके हैं। देन कम्स द हाउ, हाउ वाला पार्ट, अब इसको भी देखेंगे कि कैसे करना है, अब ये देखना है आपने कि हाउ टू अचीव प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, ठीक है। तो बेसिकली फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स में हम ये वाले पार्ट कवर करते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द स्लाइड्स। Okay. So the philosophical basis of governance can be traced back to ancient Greece. Democratic governance structures was present in Athens way back in 4th and 5th century BC. Right? See, philosophical basic governance के दो aspects हैं, एक इंडियन और एक वेस्टर्न। पहले हम वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट भी देखेंगे, देन इंडियन फिलोसफिकल थॉट भी देखेंगे, राइट। जब वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट की बात करते हैं तो प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकाइवली, ठीक है, कई सारे थिंकर्स का नाम आता है। दे हैव टोल्ड कि भाई गवर्नेंस के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी जरूरी होती है, क्या चीजें देखनी होती है आपको एक एक गवर्नेंस में, जो राजा के अंदर या रूलर के अंदर, ठीक है, क्या चीजें देखनी होती हैं, वो सारी चीजें समझाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर आपको दिखेगी कि प्रोबेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। खैर, सी पॉपुलर लीडर्स वर इलेक्टेड एंड डिसीजंस वर टेकन आफ्टर डिस्कशंस एंड डिबेट, बट Plato in the Republic raised a number of objections to the democracy. Okay. See, अब हम क्या कवर कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर कि लाइक जितने भी आपके फिलोसोफर्स थे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग गवर्नेंस का रियल मीनिंग क्या है, फिलोसफिकल बेसिस वही है ना कि गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लेटो की, सी प्लेटो का क्या कहना था कि प्लेटो के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी सही फॉर्म नहीं होती। वाई, इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग कि डेमोक्रेसी में क्या होगा, हो क्या रहा था वहां पर कि भाई लोग तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, सिर्फ ऊपर के ही कुछ लोग हैं, वहीं अपने में से किसी बंदे को अपने अंदर से सिलेक्ट करके बना देते हैं और वहीं फिर रूल करते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है, उनको अपने पर्सनल गेन के लिए ही कर रहे हैं, सिर्फ बायसनेस है बहुत ज्यादा, राइट। ये प्लेटो का कहना था उनकी रिपब्लिक के अंदर। उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज नॉट द लाइक सी हियर, डेमोक्रेसी रिस्क द एमरजेंस ऑफ डिक्टेटर्स एंड टायरेंट्स, मतलब कि अगर भले ही लोग भी होंगे, ठीक है, डेमोक्रेसी जब आ जाए तो वहां पर क्या होगा, सबको रूल पावर में आना होता है, सबको रूल करना होता है, ठीक है, लोगों का भले के लिए कोई नहीं सोचेगा। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। उसके अंदर लोगों को सिर्फ पावर की पड़ी रहती है कि हम थ्रोन पे बैठे हैं, राजा बने, मतलब रूल करें, दैट्स इट, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग असल में गवर्नेंस क्या है, रूलर कौन होना चाहिए, भाई जिसको किसी चीज की पड़ी नहीं है, फिलोसोफर किंग, जिसके लिए सिर्फ नॉलेज ही सब कुछ है ट्रू सेंस में, ठीक है, फिलोसोफर किंग, उसकी बात करते थे ये, राइट, ठीक है। खैर, हमें वो सारी फिलोसफी अभी नहीं पढ़नी, बट पॉइंट बीइंग बेसिक बेसिक जरूर पता होना चाहिए। सी, through Socrates, Plato argued that in a democracy where everyone has the right to rule, people will be driven by selfish desire to grab power for themselves, ठीक है। yes or no, democracy risks the emergence of dictators and tyrants, right. Further, there is also a possibility that a person with no skill or moral character can be elected as a ruler in democracy, yes or no.
बस लोगों ने लट करके भेजे, जरूरी थोड़ा ना मॉरल वैल्यू होना, सारी चीजें चेक होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें बंदे के अंदर होनी चाहिए। सी, ये लाइन आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो कि इवन अकॉर्डिंग टू प्लेटो अ पर्सन should have a particular skill or a moral character that is the true philosopher king according to Plato। आप ऐसे लिख सकते हो कि फिलोसोफर किंग में भी ये वाली सारी क्वालिटीज थी, फिलोसोफर किंग के अंदर प्रॉबिलिटी थी, वो शो करते थे अकॉर्डिंग टू प्लेटो। फॉर प्लेटो आइडियल रूलर्स आर फिलोसोफर किंग्स, दस प्लेटोस पॉलिटिकल व्यूज आर कंसीडर्ड एज टोटलिटेरियन। ठीक है, थोड़े से लग रहे हैं वो कि भैया एक ही बंदे को सारी पावर दे रहे हो आप, उस वे में टोटलिटेरियन है वो, राइट, कि एक ही बंदे के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर नहीं जा रहे आप। बट वो अगर ढंग से डीपली समझो तो समझ आता है कि किस तरीके से वो इलेक्ट होता है फिलोसोफर किंग। अगर वो पूरी इनकी फिलोसफी पढ़ो तो समझ आता है कि वो टोटलिटेरियन इन द सेंस नहीं है। खैर, एरिस्टोटल ब्रॉट फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स क्लोजर। अब बात करते हैं एरिस्टोटल की। ठीक है, एरिस्टोटल भाई साहब क्या कहते थे, पॉलिटी इज द ट्रू थिंग। ठीक है, ये पॉलिटी की बात करते थे। अब पॉलिटी क्या थी बेसिकली, सी, ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, असली में जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो होती है पॉलिटी अकॉर्डिंग टू हिम। यहाँ पर ये एथिक्स की बात भी करते हैं, दे हियर ही टॉक्स अबाउट एथिक्स, कि एरिस्टोटल ब्रॉट फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स क्लोजर, ही कॉइन्ड द वर्ड एथिक्स and argued that ethics and politics are two separate but closely related fields of study। ठीक है, एथिक्स की पहली बार इन्होंने बात करी इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों क्लोजली रिलेटेड है, भले ही सेपरेट है बट क्लोजली रिलेटेड है। एथिक्स और पॉलिटिक्स साथ चलनी चाहिए, अलग अलग नहीं चलनी चाहिए। सी अगेन, ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ये भी। ठीक है, कि अरिस्टोटल ने भी फिलोसॉफिकल बेसिस प्रोबेबिलिटी की बात करी कि एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है गवर्नेंस एस्पेक्ट में। एथिक्स के बिना क्या होगा, आपकी पॉलिटी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो सकती है। इनकी डेमोक्रेसी का मीनिंग अलग था, ये नेगेटिव कोनेशंस है कि भैया जो ट्रू मैन में होना चाहिए वो पॉलिटी होनी चाहिए, उसका अगर वो चीज सही से नहीं चल रही, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होगा, रियलिटी में कुछ ही लोग उसको चला रहे होंगे, बायस्ड होंगे। पॉलिटी के अंदर एक्चुअली में लोग रूल कर रहे होते हैं। ये एथिकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो। सी, यस, since ethics study examines since ethics examines the good of an individual while politics is concerned with the good of city state, in that sense they are related। ethics एक good of an individual को चेक कर रहे हैं, और जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहां पर सिटी स्टेट, सिटी नेशन, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भले के लिए सोच रहे होते हो, इसमें में रिलेटेड है। So according to Aristotle, a city can have 6 possible constitutional governance forms, right? See, kingship, जहाँ पर एक राजा है, उसका डेविएंट फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, मतलब टायरनी हो जाती है जब, कि जब वो ढंग से रूल ना कर रहे हो। देन एरिस्टोक्रेसी, उसका डेविएंट फॉर्म क्या है, ओलिगैरिकी, रूल ऑफ अ फ्यू ओनली। देन पॉलिटी, दिस इज द बेस्ट पार्ट, देन इसका डेविएंट फॉर्म क्या है, डेमोक्रेसी। ठीक है, हमें ज्यादा डीप में नहीं समझना है इनकी फिलोसफी को, तभी मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रहा, बट आपको सिर्फ बेसिक समझना है कि लाइक प्लेटो हो गया चाहे अरिस्टोटल हो गया, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, एथिक्स की बात कर रहे हैं गवर्नेंस एस्पेक्ट में, कि एक बंदे के अंदर उसकी स्ट्रॉन्ग मॉरल फाउंडेशंस होनी बहुत जरूरी है, वही बंदा रूल करे, ऐसे वैसे बंदे रूल नहीं करने चाहिए। ठीक है, नहीं तो उसकी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, गवर्नेंस नहीं आ पाएगी। उस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम एरिस्टोटल की बात करें तो पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, उसके डेविएंट फॉर्म डेमोक्रेसी आ जाएगा। और पॉलिटी कब आएगा, जब एथिक्स आएगी उसके एस्पेक्ट में। पॉलिटी के अंदर आपका एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एथिक्स को फॉलो करना है, तभी आप ढंग से पॉलिटी लेके आ पाओगे। ठीक है, ओके। सी, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन फॉर द जनरल गुड इज कॉल्ड मोनार्की, फॉर अ प्राइवेट बेनिफिट इट टर्न्स टायरनी। यस और नो? Then government by a minority is aristocracy, and if it aims at the state's best interest, ठीक है, and when oligarchy if it benefits only the ruling minority। ठीक है, उसका करप्ट फॉर्म जो है बेसिकली, ये सारे क्या है, करप्ट फॉर्म थे। then popular government in the common interest calls polity, he reserves the word democracy for anarchic mob rule। yes or no? आया समझ में? So good governance according to him aims for the common good, this is the, while poor governance aims for the well-being of a part of the city, tyrants, wealthy और mob। समझ आई ये बात, ये सबसे की क्रक्स है इसका, ये समझाना चाहते हैं यहाँ से कि उनके लिए भी क्या है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग भी, कि गुड गवर्नेंस का मतलब विच और इंटरेस्ट ऑफ ऑल, नॉट जस्ट अ फ्यू। ठीक है, वहां पर आपकी बैड गवर्नेंस है बेसिकली, नॉट गुड गवर्नेंस। So on the eastern side of the world
form of democratic governance existed at village level during Rigvedic times, but during the later Vedic period, rise of Janpads, it was replaced by a monarchical governance system. Yes, ठीक है. We'll do one thing. आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं, ठीक है. आई विल बी कमिंग अप, वी विल कंप्लीटिंग दिस होल टॉपिक एंड आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपको प्रॉपर्टी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, फिलोसॉफिकल बेसिस, ठीक है. फिलोसॉफिकल बेसिस वी विल कवरिंग टुमारो, कंप्लीटली करेंगे, बट इतना जरूर समझ आ जाना चाहिए अब तक. एंड आई होप आपके आंसर्स आप आराम से पर अब आप लिख सकेंगे. ठीक है. सो यस, so now with all this I wish you for future endeavors, and until our next lecture I wish you good luck. Till bye bye. Thank you.